ask me. I will start a new topic today, but still if you have any query, you can ask for. अभी तक जो भी आपकी query है, you can ask. हाँ जी. आपकी query जो अभी तक पढ़ाया मैंने कल जो पढ़ाया था. चलिए थोड़ी सी ग्रामर सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं. लेट्स प्रैक्टिस ग्रामर अ लिटिल बिट. ओके मैम. मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट का मटेरियल दिया था कल. वो आप लोगों ने देखा? आज टुडे. Okay. तो वो समझ में आया आपको फ्यूचर इंडेफिनिट श्वेता? मैंने भी देखा नहीं है. देखा नहीं. चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए. दे कोई बात नहीं. उसका पैटर्न ऐसी आवाज आ रही है पता है एक्चुअली कहीं से ना थोड़ा सा शोर हो रहा है. I don't know from where the noise is coming. Check. Jashan is mute. Shweta is mute. Jashan. Karan, I think there is noise from your side. Karan, yes. Now it's not noisy, right? Okay. Thank you, Karan. Okay. So let me just explain you future indefinite a little. However, it's very easy tense. सबसे easy tense होता है इसलिए इसका मैंने आपसे PDF material share किया था. Is my screen visible to all of you guys? Is yes. my okay? So yes. For example, if you have plans like it's Saturday today, it's Saturday, right? And it will be, I will say it will be Sunday tomorrow, right? So let's talk about Sunday, right? Do you have any plans for Sunday? Guys, do you have any plan for Sunday? Any plan? Kuch Sunday? No, ma'am. No plans at all? मैम. Yes, my plan. Yes, May. Yes, Shweta मेरा has. है. Shweta has. मेरा है, ma'am. Tell me, please. Yes, ma'am. Okay, Jashan बताएगा, Shweta बताएंगी. Shweta, you first of all, you tell us what's your plan for tomorrow? What's your plan? I will go to outside. I have some work. Okay. I will meet my friend. Well, very nice. Okay, so Shweta is saying that Shweta is gonna have fun tomorrow. She will have fun with her friends tomorrow. So she will meet. Hannah, first is she will meet. Okay, just give me a minute. Let me just. I'm typing whatever she is going to do. जो भी श्वेता कल करने वाली है ना, I'm just writing, है ना? ठीक है. So Shweta will meet her friends. Okay, they are school friends or college friends or they are colleague. College friend and colleague. Both. Very nice. That's good. Yes. Let's say college friends. Okay. So I can say she will have fun tomorrow. Okay. So do you have any plan to go any special place tomorrow, Shweta? Don't mind if it is personal. No, just no. Just we meet a hotel and just. Okay. So you will go to a restaurant. Right? And have party, I can say, right? Okay. So will you go for shopping also tomorrow? No. Okay. So she will go for outing. Okay. Hello. So see, Shweta के छोटा सा plan है Shweta के कि Shweta will meet her college friends tomorrow and colleagues also, and she will have fun tomorrow. Obviously, when she will meet her college friends, they will have fun together, and she will go to restaurant, have party, and she will go for outing also. So ये है plan Shweta का. तो can you see when it comes to plan, especially हम जो plan बनाते हैं, obviously future के लिए बनाते हैं. So the topic is my future tense, means future indefinite tense. Future indefinite tense means जो भी आप future में करने वाले हैं, that is future, right? So future indefinite अगर हम बात करें, so future indefinite मतलब एक मिनट ना, future indefinite मैं simple future पढ़ा रही हूँ, बाकी future मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, है ना? तो कल का श्वेता का प्लान है ये, ठीक है? तो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, सबसे सिंपलेस्ट टेंस होता है फ्यूचर टेंस, है ना? तो फ्यूचर टेंस की जब बात करते हैं तो उसमें फ्यूचर इंडिकेटर्स यूज करते हैं, जैसे विल and shall are future indicators, right? And
क्योंकि उन्होंने बताया कि वो क्या करेंगे कल, तो बिना वर्ब के तो कोई भी टेंस हो नहीं सकता, राइट। सो विल और शेल के साथ हम क्या यूज करेंगे, वर्ब। और हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको बताया था जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं will be ना यूज करते हैं, राइट। फर्स्ट एक मिनट गाइस, म्यूट योरसेल्फ प्लीज प्लीज प्लीज, है ना। तो श्वेता इज अ सब्जेक्ट, मतलब पर्सन है। यहाँ पर हमने यूज करा विल की जगह हम शेल भी यूज कर सकते हैं, बट इन स्पोकन इंग्लिश वी विल से विल, राइट, नॉट शेल। शेल यूज नहीं करेंगे हम, वी विल यूज विल ओनली फॉर स्पोकन। शेल भी सही है, बट फॉर स्पोकन वी यूज विल, राइट। ठीक है, सो सब्जेक्ट प्लस विल, मीट। मीट यहाँ पर क्या है, वर्ब है। सो मीट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देन हर यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट, बाकी पूरा बचा ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा था, क्योंकि ये सबको पता ही होगा, बट जस्ट कि भाई पढ़ाना है इसलिए, राइट, है ना। चलिए, अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर विल प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करा। अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो मैं क्या करूंगी, व्हाट शुड आई डू। जैसे मैं तो कल अपने, वेरी गुड, मैं अपने फ्रेंड से कल नहीं मिल, not माई फ्यूचर प्लान, मान लीजिए माई फ्यूचर, I will not meet my friend. हाँ वेरी नाइस, है ना। ठीक है, आई विल नॉट मीट माई स्कूल फ्रेंड, मान लीजिए, है ना, आप कॉलेज फ्रेंड से मिलने वाले, तो आई विल नॉट मीट माई स्कूल फ्रेंड टुमारो, दे आर माई कॉलेज फ्रेंड्स, राइट, है ना। तो ये हमारा हो गया जो हम नहीं करने वाले हैं। जैसे जशन, जशन का कोई स्पेशल प्लान नहीं है टुमारो, सो मैं बोलूंगी जशन will not को इंग्लिश में बोलते हैं want, क्या बोलते हैं, want। तो जशन want go to, I think वना को क्या बोलते हैं, वना wanna मतलब want to, okay wanna means want to, बट मैं बोल रही हूँ want। will not को बोलते हैं want। देखिए ध्यान से देखिए, है ना। want अलग होता है, करण, WANT want अलग होता है। I want to go, मैं जाना चाहता हूँ। I want to sing, मैं गाना चाहता हूँ। बट मैं WONT बोल रही हूँ, जो कि कंट्रैक्शन होता है will not का। will और not को साथ में हम want बोलते हैं, उसका साउंड भी डिफरेंट है। करण देखो, want नहीं बोल रही, want नहीं बोल रही, want, एक होता है want, एक होता है want। दिस इज ओ वाला, ऑरेंज वाला थोड़ा सा साउंड आएगा यहाँ पर, और वहां आ वाला साउंड आता है want में। सो want, आई जशन want go for outing tomorrow, जशन तो घर में आराम करेगा। he will just chill, he will chill करेगा, right, he will enjoy Sunday and chill, right, so he want go। so here if you see the structure, subject plus will, या आप shall भी यूज कर सकते हैं, right, plus not plus again verb की first form and plus object। this is your negative sentence of future indefinite tense, very very simple। there is nothing to learn, nothing to mug up, very simple, right, okay। Ma'am, now ma'am, yes please। मैं जो भी पास्ट हो या फ्यूचर हो भी, मैं जब मैं नेगेटिव बनाना उसमें नॉट ही लगा देना है ना मैम, ऐसा ही ना। बस जो मर्जी हो। हाँ, will not, will में बस not लगा देना, जो भी आप बोलने वाले हैं, जो भी नहीं करने वाले हैं, एक्चुअली जो भी नहीं करने वाले हैं। देखिए फ्यूचर प्लान्स जो हमारे होते हैं दो तरह के होते हैं। एक हमारा होता है शॉर्ट टर्म प्लान, ये आपको बनाना चाहिए अपने प्लान्स गाइस। शॉर्ट टर्म प्लान्स होता है, एक लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी एक साल के अंदर अंदर आपका क्या प्लान है, या एक महीने के अंदर का आपका क्या प्रोग्राम है, अप्रैल के महीने में क्या करने वाले हैं, कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं क्या, राइट, वो कहलाता है शॉर्ट टर्म प्लान, राइट। बट लॉन्ग टर्म प्लान मतलब आने वाले 5 सालों में क्या करने का सोचा है आपने, आने वाले 1 साल में क्या करने वाले हैं, व्हाट्स योर प्लान फॉर योरसेल्फ। that may be your personal that may be your personal plan, or with your family sometimes, and with related to your your career। हो सकता है अगले साल मैं पुणे जा रहा हूँ, वहां जॉब ढूंढना है, रिज्यूमे दे दिया है मैंने, ठीक है, या बैंगलोर जा रही हूँ। हो सकता है नेक्स्ट डे शादी का प्लान हो, है ना।
ठीक है, या अगले साल मुझे यहाँ जाना है, आउटिंग पर जाना है, तो हम लोग ना गोवा जा रहे हैं, या हम लोग कश्मीर जाने का प्लान है नेक्स्ट ईयर. सो योर शॉर्ट टर्म प्लान्स एंड योर लॉन्ग टर्म प्लान्स, जो भी आपके प्लान है वहां हमेशा हम यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि वो निश्चित होता है, राइट, है ना. ठीक है, चलिए अब देखिए. नाउ इफ आई वांट टू आस्क क्वेश्चन, so that is very simple tense. यहाँ हम क्या करते हैं, जो हमारा हेल्पिंग, मैंने आपको हमेशा बताया है, हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट के पहले आ जाता है. जो विल शेल क्या है, एक्चुअली विल शेल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है. क्या है विल शेल? दे आर हेल्पिंग वर्ब. Helping. So when you make question, helping verb हमेशा सब्जेक्ट के पहले आ जाते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि will जो आएगा वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा. Am I right or not? will सब्जेक्ट के पहले Yes. आ गया, या shall सब्जेक्ट के पहले आ गया. बाकी सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा. मतलब वैसे का वैसा मतलब बचा के आप, तो सिर्फ एक चीज बची है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सबसे सिंपल है. फिर यहाँ पर भी यही होगा, शेल के साथ भी यही होगा. यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड हियर इज द क्वेश्चन मार्क, राइट. सो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब एक बात बताइए, मैंने दोनों को अलग अलग क्यों लिखा? इसका कोई रीजन बताएगा, मैंने विल और शेल को अलग अलग क्यों लिखा? Actually, will और shall मतलब सेम ही होता है, बस सम कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं will Very shall, good. जैसे कि वेरी गुड, we will meet soon, वेरी नाइस, वेरी गुड, we shall, जैसे वेरी कुछ चीजों के लिए हम shall यूज करते हैं, पर मैक्सिमम हम will ही यूज करते Very हैं. good. बस ये कंडीशन, और वेरी कुछ नाइस, मीनिंग दोनों का सेम ही है, बिल्कुल बिल्कुल सही, फ्यूचर ही है. बिल्कुल सही कहा श्वेता ने. दोनों का मीनिंग सही है. बस क्या होता है, ब्रिटिश वाले जो ब्रिटिश है, उनका ग्रामर पढ़ रहे हैं हम, तो ब्रिटिश ग्रामर रूल के हिसाब से उन्होंने ये कहा कि जब आप क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं, दिस इज ओनली फॉर क्वेश्चन सेंटेंस, व्हेन यू आर मेकिंग क्वेश्चन सेंटेंस यू हैव टू यूज शेल विथ आई एंड वी. अगर आप आई और वी के साथ विल यूज कर लोगे तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. दैट मीन्स, जैसे मुझे बोलना है will you meet your friends tomorrow? क्या आप कल अपने फ्रेंड्स से मिलेंगे? will you meet your old friends tomorrow? yes, I will meet my old friends tomorrow, right? so will you meet your old friends, है ना. अब यहाँ पर you यूज करा है, इसके अलावा मैं they भी यूज, will they meet, will he meet, will she meet, will Rahul meet, right, वगैरह, will Shweta meet. but क्या हम कल संडे को मिलेंगे? क्या कल हम संडे को मिलने वाले हैं? क्या मैम कल एक्स्ट्रा क्लास लेंगी? क्या हम कल फिर से मिलेंगे? सो शेल वी मीट. अब हम क्या बोलेंगे? शेल वी मीट टुमारो. क्या हम सब कल मिलेंगे? शेल वी मीट टुमारो. क्या कल हम मिलेंगे? तो यहाँ पर विल वी मीट नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, शुरू से ये रूल बताया है कि हमेशा शेल के साथ आई और वी लगता है. तो शेल आई मीट यू गाइस, शेल वी मीट टुमारो, shall I start. आपने सुना होगा, टीचर्स लोग हमेशा पूछते हैं क्वेश्चन, shall we start, shall we go, shall we go, Yes. shall we start, like this. So this is Shall all we start about, meeting? shall we start meeting, है ना. shall I come with you, like this, है ना. तो this is all about future indefinite tense. let me show you also, है ना. तो ये थोड़ा सा, ये बस जो टेंस था वो मैंने बाद में लिया लास्ट में, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे इजीएस्ट था, तो उस पर थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स डिस्कस करने थे. दैट्स ऑल, है ना. तो आप लोग अपने फ्यूचर प्लान्स बनाया करिए, है ना. और हिंदी में नहीं, अब इंग्लिश में बनाइए फ्यूचर प्लान्स, है ना. अपने फ्यूचर प्लान्स बनाना चाहिए, सही रहता है. क्या मैं ये नहीं करी कि आप फ्यूचर के प्रति बहुत ही ज्यादा एकदम डिप्रेस्ड हो जाओ कि यार क्या करूंगा, चिंता कर रहे हो, जॉब नहीं लग रही, या ये काम नहीं हो रहा. नहीं, यू मेक योर प्लान्स. हमेशा प्लान्स 100% नहीं होते, मतलब दे आर नॉट 100% सक्सेसफुल, बट फिर भी टू सम एक्सटेंट 80-90% तो आपके प्लान्स हमेशा होते हैं, राइट. सो यू शुड मेक योर प्लान्स. स्मॉल प्लान्स हो गए, या एक साल क्या करने वाले हो, कुछ प्लान्स बनाओ. या आप अपना डेवलपमेंट करना चाहते हो, इफ यू वांट टू हैव ग्रोथ इन योर लाइफ, है ना. ग्रोथ जरूरी नहीं है, लोगों को लगता है ग्रोथ मतलब होता है, लोगों को ग्रोथ मतलब लगता है कि इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली ग्रोथ की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं हम, राइट. पीपल व्हेन you think of growth, people think of फाइनेंस, भाई पैसा ज्यादा होगा आगे मेरे पास. नो, सिर्फ फाइनेंशियली ग्रोथ की बात नहीं हो रही. यू हैव टू बी फिट,
है ना, मान लीजिए आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, यू वांट टू ग्रूम योर पर्सनालिटी, है ना, यू वांट टू लर्न समथिंग, आपने मान लीजिए कोई डांस सीख लिया, आपने सिंगिंग सीख ली, आपने पेंटिंग सीख रहे हो, राइट, है ना, कुछ और नई लैंग्वेज सीख रहे हो, राइट, दैट इज ऑल्सो डेवलपमेंट, दैट इज ऑल्सो योर ग्रोथ ऑफ योर पर्सनैलिटी, है ना, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो योर ग्रोथ, है ना, तो फाइनेंशियली भी हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, मेंटली थेरेपी कुछ ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो, है ना, राइट, और एंटरटेनमेंट के लिए ले रहे हो, फैमिली के साथ कि भी कहीं जाना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना, चलिए, सो श्वेता इज सेइंग हर प्लान, व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी लोगों का क्या प्लान है? अदर मीनवाइल में जब तक मेरी फाइल ओपन हो रही है ना, तब तक हम बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक वाइल, I यस, will future also planning. I will go next month Bangalore. वाओ, मींस यू आर गोइंग देयर टू डू जॉब, Yes. वाओ, दैट्स नाइस, Actually, work from home is over, so I will go हाँ to हाँ हाँ, office also, oh that's good, and I will go to Goa also. so you have been working, here for long time, means have you been working for long time, or since corona you have been at home, मतलब घर आप कोरोना से हैं कि पहले बाहर से करते थे जॉब? Corona. Bangalore. Before हाँ? also I working यार Bangalore. Okay, you I were जरा बस आ जा because a five year is completed in Bangalore. okay, you were doing बस आ गया ना Your voice is so much break, मैं ma'am. तो रहा Okay, yeah, just because I'm of not corona, able to. yeah, I can understand. Corona means, we always say corona means corona. Don't do anything, just sit at home. Just kidding, right? But yes, I can understand that. So you go back to, Bangalore and do your work. That's good also. Bangalore is a nice place, yeah, where people are very good at speaking there. Communication is good. Because Yes, climate is too IT, good and IT communication companies, also good. IT companies are there, right? There is ले मम्मा कलम आ गया ambience है ना वहाँ पर, गुड़का कसी का there is हम क्लास में ambience. हाथ में बढ़िया बदला Actually, ma'am, I'm not able to your voice listening. Other people, I think, unmute. Yes, yes. Hello. Jashan, hello, Jashan, mute yourself. Jashan, your voice is audible to everybody. Now it's okay. Okay. Yes. So, environment is good there. Good means that is, sufficient to learn English. Yes. People are speaking English there. People come here from, different states, and they are doing the job. And how they are Yes. going to communicate, that's the only language, that is English, right? That's Yeah, correct. So I think you will definitely, ace your communication नहीं, skills. एक्चुअली मेरा क्या है ना कि वर्क फ्रॉम होम चला ना, तो बस हम लोग मीटिंग में रहते थे आधे घंटे. दैट टाइम आई एम ओनली टॉकिंग स्पीकिंग. Yeah. अदर टाइम हम लोग हिंदी में बात करते, तो मेरा पूरा फॉरगेट हो गया. हाँ, but ज्यादा वहां पर हुआ ही आप नहीं वर्क इंग्लिश फ्रॉम में ही होम से बात 2 करना, साल. वहां पर आप सबसे इंग्लिश में हाँ, बात वहां करिए. पे. हाँ, that's यस. सभी को आता है. Yeah. That's good. हाँ, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. Then you will have practice also daily, है ना. चलो, so ये है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आप देख सकते हैं. So फ्यूचर इंडेफिनिट मींस, देखिए यहाँ लास्ट में लिखा है shall I go, will I go, गलत है. हाँ, पर ऐसा कहा जाता है मॉडर्न इंग्लिश में, जो आजकल जो लोग यूज करने लगे मॉडर्न इंग्लिश में, will I go आजकल लोग चलाने लगे. The people speak will I also. ग्रामेटिकली मैं बात करूँ तो shall I सही है, मोस्ट प्रेफरेबल है, बट मॉडर्न इंग्लिश में लोग आजकल कहने लगे हैं, they have started, but still as a grammar teacher I should tell you the correct answer, right? है ना. So भविष्य में होने वाले काम, tomorrow, next day, next month, next year, later, right? Right? भविष्यवाणी. Yes. आपने कभी वेदर फोरकास्टिंग सुना है? वेदर फोरकास्टिंग मतलब वो जो मौसम विभाग वाले होते हैं ना, राइट? यस. फोरकास्ट करना मतलब प्रेडिक्ट करना, भविष्यवाणी. वेदर फोरकास्टिंग अलग होती है, फ्यूचर की फोरकास्टिंग अलग होती है. So if you want to listen a little bit of भविष्यवाणी, आप अपनी भविष्य देखना चाहते हो, you want to see it, इंग्लिश में भी आ जाएगा ना, you can check in English also, so you can go for that prediction and all. And then future planning, like Shweta has. I don't believe to future planning. Means bhavishwani, I don't like. I don't believe. Yes, just for learning. Yes, many people don't believe, Yeah. but some believe, some don't believe. I know. Okay, so yeah, but you have your future planning, right? What are you gonna do in coming years, right? Okay, so here affirmative, negative, interrogative, interrogative. You can see these are question sentences. I will go to market, I will not, shall I not. So these are some examples, और simple है, यहाँ पर chart है. But मैं आपको क्या बोलूंगी ना, you make your plans.
सबसे सिंपल। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि विल यूज करके ही हम फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, वो 2nd क्लास में एक बच्चा है, मैंने इससे पूछा बेटा व्हाट डू यू वांट टू बी? मैम आई वांट टू बी अ डॉक्टर। No, I want to be an actor, I want to be an engineer, right? So सबका अपना अपना, बचपन में हम लोग बोलते थे मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे तो एस्ट्रोनॉट बनना है, राइट? सो जब कोई बच्चा बोलता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, तो वो फ्यूचर की बात कर रहा है, पर वो विल शैल यूज तो नहीं कर रहा है, राइट? सो इफ यू वांट टू टॉक अबाउट फ्यूचर, जरूरी नहीं, दिस इज नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट नेसेसरी टू यूज विल और शैल ऑल द टाइम। देयर आर सम अदर एक्सप्रेशंस आल्सो। देखते हैं यहाँ पर, जैसे want to be, जैसे हमने देखा want to be, देख सकते हैं want to go, want to be, है ना? want, so want वर्ड आता है। want क्या होती है? want means your इच्छा, your wish, फ्यूचर के लिए, राइट? नेक्स्ट है जो मैं हमेशा यूज करती हूँ, मैं बहुत यूज करती हूँ गाइस, दैट इज gonna। gonna मतलब going to, going to मतलब मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ। जैसे आई एम गोइंग टू बाय समथिंग टुमारो, आई एम गोइंग टू plan for buying something tomorrow, na? I'm going to do some shopping, I'm going to talk to my parents, like this, है ना? I'm going to buy a car, right? So going to matlab gonna, I'm gonna go to London, Shweta is gonna go, Shweta is going to go, होगा, Shweta is gonna go to Goa, right? That's all. She's gonna shift to Bangalore. We are gonna enjoy a party tomorrow, like this. So going to, gonna आप use कर सकते हैं। Karan, Jasim, Jashan, do you have any query? What are you gonna do tomorrow? Come on, tell me in some sentences. What are you gonna do tomorrow? Karan, what are you gonna do? Jasim, what are you gonna do with Sunday? Don't you feel really happy when Sunday is coming? मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है यार। I really enjoy Yeah. it. I wait Yeah, for obviously. Sunday. I wait for Sunday. I'm also waiting Sunday, Saturday, I wait Sunday. each and every day. I wait for Sunday to come. कब आएगा Sunday? When it's going to come? Yeah. Actually क्या होता है? Actually, Because हाँ, yes, you tell me. no, Yes. no, you tell me. Actually what happens, especially when you are in job and you are working day and Correct. night, and when Sunday comes you have that, oh my god, now it's relief, right? But it has its own feeling when you don't do anything. Every day you are not doing anything, your day is same, then you don't have that much excitement for that. But when you don't have something and you are wishing to have something, then you enjoy that ki हाँ अब Sunday आ गया now. हाँ, you tell me Shweta, what do you want to say? No, I am also waiting Saturday, Sunday because my Saturday, Sunday is off, no? So I'm waiting. Friday is coming, then I'm very happy. Oh, when 8 o'clock and it's laptop close and enjoy my weekend. So you have holiday on Saturday also, right? Yeah, Saturday, Sunday. 5 day IT के लिए बहुत है. हाँ बहुत यार, pressure रहता है. हाँ, I can understand because daily you have laptop, from morning to night you are working. Yeah. I No, can actually understand. ना मतलब requirement के according because this client requirement if you want 1 hour then you cover 1 hour. मतलब हम लोगों को daily एक नया task मिलता है every You day, have to नई complete चीज a सीखने को. target daily. Every single day you Yeah, have to target. complete a target. Okay, I can understand. Yes. But Yeah. but still it's Yeah. not, you don't have any field work. Sitting in front of a laptop and doing the thing is also exhausting. I can understand it. Yes, with mind work totally. Mhm. Tied to all means mind, not And body, but mind totally. the body also, Tied. because you are sitting Yeah, at one sitting. place, you're not moving. And that may be a reason, but we can move. If it is work from home, we can walk a little bit, right? But I have seen many people, they are sitting from morning till evening till 6 o'clock and working on computer like this. I don't like work from home. I don't like really. Very worst. Yes. Okay. So let's move for the next part. So guys, actually I was thinking to take class tomorrow. Are you comfortable with that? Tomorrow we will have a last class. That will be a kind of chit chat class. Just chit chat. If you tell me, if you say just chit chat for half an hour chit chat.
or half an hour will be chit chat, or half an hour will be just a topic? You tell me. What time? You suggest me, guys. Evening 8:30 yesterday or tomorrow, sorry. Tomorrow 8:30. Evening, all will be available in the evening, or they are going out? Means generally people go out, they go for shopping and for outing, especially in the evening. So Oh if no, they why are not? free- no, why not? For what? For outing or for the class? What do you say? No worry. Clearly say. Tell me, come on guys, tell me. I will do as you say. जैसा आप बोलोगे I will comfortable 8:30. I will join sure Okay. tomorrow. What about others? 8, Guys, yeah, 8 and 8:30 I will be available. Jasim, Karan, you tell me, please. I will join tomorrow 8:30. Okay. Okay, Karan is okay. Jashan and Jasim, what about you? Okay. So we will meet 8:30 tomorrow. That's it. That's all right. And I hope you will not have problem with this timing. And tomorrow, what is my plan? I'm going to tell you about coming batches. जो batch जो नए आने वाले हैं, because I will be done tomorrow, है ना? कल हमारा फिनिश हो जाएगा कोर्स तो आज ही फिनिश हो जाता है, बट मैं थोड़ा सा आराम से करा रही हूँ. सो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ आर्टिकल, और उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहती हूँ योर प्लान, मतलब what are your plans for for the next batch. And I will also tell you how this coming batch is different from ABC batch. What are you gonna learn in the coming batch? बच्चों को confusion होता है कि हम basic batch में क्या पढ़ने वाले हैं. I will tell you that. Along with that, I will give you some tips, right? If you don't have any environment, or how to how to have consistency, right? And how to improve your communication skill. First or second class अगर आपने attend की है तो you have idea, but still I will have talked. आपकी कोई भी query होंगे तो I will sort out that query also tomorrow. So a kind of chit chat we will have session tomorrow, है ना? ठीक है, हो सकता है 1 घंटे से कम समय लगे, है ना? जरूरी नहीं कि 1 घंटे, but we will have a chit chat also, है ना? So let me start a last topic of the day, and that is a very a topic that people ask for, students ask for. ये वो topic है जो बच्चे बड़े confused रहते हैं और हमेशा पूछते हैं कि मैडम ऐसा क्यों होता है, मैम द क्यों लगा रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा, बार बार द th द क्यों लगाते हैं. I cannot understand why the, इसको द बोलते हैं कि इसको दी बोलते हैं. आर्टिकल का कुछ फंडा समझ में नहीं आता, राइट? सो टुडे I'm talking with you about आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं. और मैंने जो आपको आर्टिकल का PDF मटेरियल दिया है, दैट इज वेरी मच इन डिटेल, राइट? तो उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, तो चली जाऊंगी, आई विल गो, बट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं पहले आपको पढ़ाना चाहूंगी. So let's start with article today, last topic of the day, of the batch, right? So let me start. First of all, what is article? Article होता क्या है? First of all, right? If I say I have an idea, मैंने कहा I have an idea, get an idea, right? So I have an idea, मेरे पास एक आइडिया है. So यहाँ पर एन मैंने क्यों यूज करा पता है आपको? कैन यू से मैंने यहाँ पर एन क्यों यूज करा है? मैंने बोला आई हैव एन आइडिया गाइस, मेरे पास एक आइडिया है. टेल मी व्हाई आई हैव यूज्ड आर्टिकल है, आर्टिकल है एन, यहाँ पर आर्टिकल है. वेरी नाइस विनीता जी, यू हैव कम एट द राइट टाइम, बिल्कुल राइट टाइम पर आए हैं आप. मैंने आर्टिकल बस अभी स्टार्ट करा है, राइट? Actually, you have not been coming for some days, so I was thinking everything is all right or not. So, an idea. So, Shweta is saying, yes, ma'am, it's an article. But what is parts of speech of article? अगर मैं बोलूं आर्टिकल होता क्या है, तो मैं आपको एक चीज बताऊं. आर्टिकल एक तरह का एडजेक्टिव होता है. जैसे मैंने बोला I have a mobile. मैंने बोला I have a mobile. मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक लैपटॉप है. So mobile is what, guys? Mobile is a noun. Am I right or not?
Yes, mobile is a noun. So मैंने आपको एक चीज बताई थी एक दिन, मैंने कहा था नाउन के आसपास जो घूमता है वो कौन होता है? एडजेक्टिव. दैट इज एडजेक्टिव. चमचा. प्रिंसिपल के चारों तरफ चमचा घूमता है, तो नाउन के चारों तरफ जो चमचा घूमता है वो होता है एडजेक्टिव. सो हियर ये जो ए है आर्टिकल, वो किसके बगल में आ रहा है? दिस इज कमिंग नेक्स्ट टू nouns. That means आर्टिकल एक तरह का क्या हो गया? एडजेक्टिव. ये कम लोगों को पता होता है. आर्टिकल तो काफी पढ़ा है हमने. यस जशन, प्लीज आस्क द क्वेश्चन. मैम जो नाउन है वो कैसे पता चलेगा ये नाउन है या नाउन नहीं? हाँ जी, नाउन मैं- कैसे पता चलेगा बेटा? मोबाइल नाउन है ना, मोबाइल तो नाउन है ना. नाउन तो पहचानना हमें आ गया ना. नाउन पहचानना तो मैंने आपको पहली क्लास से बताया था. हाँ। प्लेस, पर्सन एंड थिंग नाउन होता है. जो आसपास जो मैं वो है जिसका नाम है, जो जो चीज है, मतलब जो हाँ, उसको नाम किया जाता है. जैसे कोई भी फोन है, जैसे पर्सन. यस, कोई भी थिंग. प्लेस, पर्सन एंड थिंग नाउन है ना. तो मोबाइल के बगल में ए लिखा हुआ है. सो ए यहाँ पर क्या हो गया है? ए इज आर्टिकल और मोबाइल है यहाँ पर नाउन. तो मेरा एक सिंपल सा एक फंडा है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर कराना चाहती हूँ कि आर्टिकल होता क्या है. आर्टिकल एडजेक्टिव होता है. एग्जैक्टली राइट. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. हमने दो आर्टिकल देखे. एक आर्टिकल होता है ए, एक होता है एन और एक होता है द. राइट, तीन आर्टिकल्स हैं. राइट, इनमें जो ए और एन होता है उसे बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल. क्या कहा जाता है? इंडेफिनिट. और ये जो द आर्टिकल होता है इसको कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल. ऐसा क्यों? अभी मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ कि डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है. अभी तक तो हमने पढ़ा ए, एन और द, ये आर्टिकल्स होते हैं. बट फिर मैम ने बोला डेफिनिट और इंडेफिनिट, ये क्या है? चलिए देखते हैं. लेट मी जस्ट शो यू. जस्ट गिव मी अ मिनट ना. जस्ट गिव मी अ मिनट. देखिए, सी, कैन यू सी हियर? ए, एन और द को आर्टिकल कहा जाता है. इसका प्रयोग नाउन के पहले होता है. कैन यू रीड दिस? Yeah, के sure. पहले होता है, ये एडजेक्टिव्स होते हैं. ठीक है. सो देयर आर 3 आर्टिकल्स. उसको मैंने डिवाइड कर दिया है. आई हैव डिवाइडेड. सो ए और एन आर्टिकल जिसे हम कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, एंड एक होता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल THE, द. ठीक है. अच्छा एक बात बताइए, इसको द बोलेंगे कि दी बोलेंगे? प्लीज टेल मी. इज इट कॉल्ड द और दी? The दी. एक्चुअली दोनों बोलते हैं. द भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं. अगर THE उस वर्ड के पहले आ गया जो जिसके पहले वोवेल हो, अगर AEIOU वर्ड लेटर आ गया द के पहले, तो उसको दी बोलेंगे. जैसे दी अमेरिका, दी अमेरिका. राइट, ठीक है. पर अगर द के बाद आने वाला जो वर्ड है उसका पहला लेटर वोवेल नहीं है, तो वहां द बोलेंगे. समझ में आ रही है आपको? दी कब बोलेंगे? जब वोवेल आता है आने वाले वर्ड में. और अगर द बोलना है तो आने वाला जो वर्ड है उसका पहला लेटर वोवेल नहीं होता. ठीक है. चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि आर्टिकल को कैसे पढ़ना है. राइट, प्रोनाउंसिएशन देखते हैं. वही मैंने आपको बताया, अ, एन, द, दी. ठीक है. सो आर्टिकल को पढ़ने का तरीका मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे पढ़ना है ना. माय वे टू टीच यू द आर्टिकल. राइट. सो सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए गाइस? मीनिंग. अगर आपको मीनिंग पता होगा तो आर्टिकल आपको समझ में आ जाएगा. मैं मीनिंग से आर्टिकल बताती हूँ, रूल से आर्टिकल नहीं बता रही हूँ. मैं कैसे बता रही हूँ? मीनिंग से. पहला जो तरीका होता है मीनिंग से और दूसरा वाला होगा रूल से. ठीक है. तो पहले मीनिंग वाला तरीका देखते हैं. ठीक है. तो मीनिंग ये होता है कि अगर आर्टिकल ए और एन का मतलब वन हुआ तो, जैसे मैंने बोला आई हैव अ पियानो. आई हैव अ पियानो, इसका मतलब मेरे पास एक पियानो है. तो यहाँ पर अ का मतलब क्या हुआ? वन. आ का मतलब क्या हुआ? वन.
तो हाँ। आर्टिकल ए और एन का मतलब होता है वन, पहला मीनिंग जो कि सबको पता है। मैं सबसे पहले सिंपल वे में बता रही हूँ, फिर हम दूसरी चीज पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात, अगर ए या आ के बाद, ए और एन के बाद आने वाला वर्ड, उसका साउंड क्या है? जैसे देखिए, अ कैट, अ बैट, अ बेंच, अ फैन। यहाँ पर हमने ए लगाया हुआ है, अब इसको साउंड क्या आएगा? आर्टिकल ए है पर इसको हम साउंड अ बोलेंगे। अ कैट, अ बैट, अ बेंच, अ फैन, राइट? बट अगर इसके बाद आने वाला वर्ड वॉवल है, सॉरी लेटर वॉवल है, जैसे यहाँ पर सी, बी, डी, एफ, यहाँ पर सब कॉन्सोनेंट आ रहे थे, कॉन्सोनेंट आ रहे थे इसलिए ए लगेगा। बट अगर कॉन्सोनेंट की जगह पहला लेटर क्या हो जाए? वॉवल। क्या हो जाए गाइस? वॉवल। तो एन आर्टिकल लग जाता है ना? आपको पता है, जैसे एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर तो एच लगा हुआ है, यहाँ तो एच लगा है, बट यहाँ पर फिर एन आर्टिकल क्यों लगाया? कोई बताएगा मुझे? मैं भी एक्सप्लेन करूंगी, बट यू फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी। साउंड जो है एच है लेकिन साउंड आर आता है। वेरी गुड मैम, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमें सिर्फ लेटर नहीं देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है साउंड। लेटर तो हम देखते हैं, कई बार लेटर तो आता है बट साउंड नहीं आता। सो हियर द साउंड ऑफ वॉवल, हमें वॉवल का साउंड देखना है। यहाँ हम इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, वी जस्ट कॉल इट ऑनेस्ट। साउंड क्या आ रहा है? ऑनेस्ट, ऑरेंज वाला साउंड आ रहा है, भले ही यहाँ पर एच हो। तो रूल क्या है? यहाँ आ गया है रूल, हमें सबसे पहले कोई भी वर्ड हो उसका लेटर देखना है, ठीक है, पर उसके अलावा प्रोनाउंसिएशन भी चेक करना है। अगर प्रोनाउंसिएशन या साउंड उसका वॉवल वाला आ रहा है तो हमें एन लगाना है। इसलिए यहाँ पर एच कॉन्सोनेंट है, बट फिर भी इसकी आवाज कैसी आ रही है? ऑनेस्ट। एच साइलेंट है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? एन ऑनेस्ट मैन। सिमिलरली एन एम ए, एम को जब आप लिखोगे, when you write एम इन हिंदी, ए एडी का, जैसे जो हमारे स्वर होते हैं ना हिंदी के, अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ, सो वो वाले साउंड आने चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ एम, इस एम को मैं हिंदी में लिखूंगी तो ए एडी वाला लिखूंगी, राइट और नॉट? ए एडी वाला लिखूंगी, ए और फिर माँ, एम। सो कौन सा आया साउंड? हिंदी के स्वर का साउंड आ रहा है एम लेटर में, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है? एन एम ए। भले एम कॉन्सोनेंट हो बट यहाँ पर साउंड आ रहा है ए एडी वाला, हिंदी के स्वर वाला, एन एम ए। सिमिलरली एन एयर, एयर मतलब राजगद्दी जो होती है, एयर। सो दिस इज नॉट हेयर, दिस इज एयर, एच यहाँ पर साइलेंट है, इसलिए एन एयर, एन एमएलए। क्लियर है? चलो एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ, है ना? अब ये एग्जांपल्स देखिए, एन अम्ब्रेला, एन एक्सरसाइज, एन अगली वुमन, अगली मतलब बदसूरत, राइट, नॉट ब्यूटीफुल, एन ऑक्स। यहाँ सब जो पहले लेटर हैं वो सब वॉवल हैं, देख सकते हैं, यू से स्टार्ट हो रहा है तो एन आ गया है, ई से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी यू से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी ओ से स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर ए ही आई ओ यू वॉवल भी आ रहा है और साउंड भी आ रहा है। बट एक और एग्जाम्पल देखिए, लुक एट दिस एग्जाम्पल, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवल हो पर साउंड वॉवल वाला नहीं हो, पॉइंट टू बी नोटेड, साउंड में वॉवल नहीं आ रहा है, लेटर में तो वॉवल आ रहा है बट साउंड में नहीं आ रहा है। देखिए यूरोपियन, यूरोपियन में कौन सा लेटर आ रहा है? वॉवल आ रहा है कि कॉन्सोनेंट आ रहा है गाइस? वॉवल, वॉवल है, बट वेरी गुड, वॉवल, ई वॉवल होता है, बट फिर भी इसके पहले एन नहीं लगा रहे हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो ई है वो तो वॉवल है बट इसका साउंड क्या आ रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? इसको बोलेंगे यूरोपियन। अब इसको हिंदी में लिखो, यूरोपियन को हिंदी में लिखोगे तो यमराज वाला, या से यमराज होता है ना, या से यक भी होता है, तो य से य, जो य होता है, हिंदी के जो वर्ण होते हैं, व्यंजन, वो वाला साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है य। सो यूरोपियन। इसी तरह से यूनिट, यूनियन, यूनिवर्सिटी, या साउंड आ रहा है, या क्या होता है? व्यंजन होता है,